Hello everyone. As you know that I am doing geography previous year questions from civil services examinations. Last class we have seen the questions of 1989. We did part 1 for 1989. Today we are going to see the part 2 because this year they have asked a lot of questions. So that's why I am making many parts. I think there will be 4 parts. Okay, so let's see this year questions. I mean 1989 questions. Okay, this is about myself. Okay, so the next question for this year is which of the following are known as the coastline submergence? Okay, uplifted lowland, rear coast, emergent upland, none of the above. Okay, so they are asking about known as coastline of submergence. See, the coastline of submergence is nothing but it is actually rear coast. Okay, so the answer is B. Next question. Okay, so it's a match list, so we have to match bajra, wheat, groundnut, banana with rust, wilt, tikka, regot. Okay, so it's kind of जैसे कुछ बीमारी टाइप की हो जाती है इन जो भी हमारे बाजरा है, वीट है, तो किस टाइप का प्रॉब्लम इसमें होता है उससे हमें मैच करना है. सो we'll see that. Okay, see actually बाजरा we have to match with ergot. Okay, wheat is nothing but it is wilt, groundnut is rust. Okay, and banana is tikka. Okay, so answer is C. So if you know these things is fine. If you don't know, please see the match list and remember for longer time. ठीक है, देखिए ये सब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमें किस तरीके से याद करना है. इट्स अ फैक्ट, सो हमें इसको याद ही करना होगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके, सो यू वॉच दिस twice, thrice, you will remember for longer time. Next question, I think which is missing. Which of the total water on earth fresh water reserve constitute approximately? ठीक है, अर्थ में जितना भी फ्रेश वाटर उसमें कितना हमारा टोटल वाटर में कितना फ्रेश वाटर है ये पूछ रहा है. इट इज 2.7 सॉरी 1.2 2.7 4.5 5.8. ओके, देखिए आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा. मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत है, बट जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर का रिजर्व इट इज़ 2.7. ठीक है, जितना भी हमारा सी का पानी है या फिर जो भी हमारा नदियों के पानी है, जो भी हमारे ज़मीन के अंदर जो भी पानी है वो सारा उसमें जो फ्रेश वाटर है इट इज़ एक्चुअली 2.7. ओके, सो द आंसर इज़ बी. आप लोगों ने कई जगहों पे ज्योग्राफी की बुक में मिल ही जाता है ये. ठीक है, सो इट्स आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज अफेक्टेड मोस्ट ड्यू टू पार्टीशन? ठीक है, सो पार्टीशन में कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है इंडस्ट्री? इट्स कॉटन एंड जूट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, टी एंड कॉटन. So it is actually the most affected due to partition is nothing but is cotton and jute. Okay, answer is E. ठीक है, देखिए अगर इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं, आप बस इसको देखो, याद कर लो. मैं ज्योग्राफी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेके आऊँगा, इवन NCERTs का भी लेके आऊँगा. थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, धीरे धीरे कर रहा हूँ. ठीक है, so you will get the static part as well as the previous year question for entire preparation of especially for civil services, whether it is UPSC or state PSC. You will find everything at one place. Okay, I will take some time obviously because use syllabus is there, so slowly I am doing. So even those who are following, you will find slowly each and everything. Okay, so the answer is E for this, cotton and jute. Next question, which of the following varieties are correctly matched to their respective plant type? ठीक है, वैरायटीज है उसके प्लांट टाइप में हमें उसको मैच करना है.
ठीक है, CHS1, IR8, RR21, HB4. So we have to match with राइस, वीट, ज्वार, शुगरकेन, बाजरा. ठीक है, जैसे देखिए जब हमारा जब बोने का टाइम आता है तो आप मार्केट में जाओगे तो जो भी हिंदी में बीज बोलते हैं, आई डोंट नो आप इंग्लिश में आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. ठीक है, तो वो बीज जब आप जाते हो मार्केट में लेने के लिए, इट्स कॉल्ड वही उसी को वैरायटी बोलते हैं. ओके, तो ये सब सारी चीज़ें अलग अलग वो हमें मैच करने ना. ज्वार का क्या होता है, वीट का क्या होता है. इवन वीट के लिए अलग अलग वैरायटीज़ भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. राइस में भी एक से ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पे एक ही दिया है, वो हमें मैच करना है. ठीक है, कुछ लोग सोच सकते हैं यार ये क्या है, मतलब इसको कैसे इससे मैच करना है. तो इट्स नथिंग. जब बोने का टाइम है, देखिए जो हम लोग पैदा करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे यहाँ गेहूँ होता है. ठीक है, तो जो हम गेहूँ जो पैदा करते हैं, हम चाहें तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर बोने में. बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम गेहूँ को मशीन से कट करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो होता है, दाना जो होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है. आई विल नॉट से ऑल, कुछ कुछ हो जाता है. ठीक है, तो अब मान लो उसको अगर आप बोते हो तो हो सकता है कि आप वो उगे ही ना. तो उस चीज़ से बचने के लिए, ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट जो होती है, ये वैरायटीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है. ठीक है, तो सारे किसान, इवन हमारे घर में भी वी आर गोइंग टू द मार्केट एंड वी आर बाइंग दैट. मार्केट से नहीं होता है, सोसाइटी होती है, वहीं से हमें खाद भी मिलता है ना, यूरिया भी से, यूरिया, डाई एंड दिस वैरायटीज़. ओके, ऑल्सो वी गेट फ्रॉम, इट्स लाइक गवर्नमेंट जॉब. आई विल नॉट से गवर्नमेंट जॉब, सोसाइटी होती है, वहाँ से हम जाते हैं, लेके आते हैं. वहाँ पे सारे किसान रजिस्टर्ड होते हैं. ठीक है, और उसको फिर हम लोग बोलते हैं. उसमें पैकेट में जो 60 kg का मान लेते हैं पैकेट है, तो उसमें जो भी दाना होगा वो कोई भी उसमें ख़राब नहीं होगा. तो जो भी आप खेत में बोते हो, इट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी. तो आपकी जो ईल्ड होती है वो बाद में ज़्यादा होती है. तो दैट्स वाई द वैरायटी इज रिक्वायर्ड. ओके, सो तो विल सी हियर. देखिए द CHS1 जो होता है, इट इज़ एक्चुअली ज्वार की वैरायटी होती है. और IR8 जो होता है, इट इज़ राइस की वैरायटी होती है. और RR21 जो होता है, इट इज़ ये वीट की वैरायटी होती है. और HB4 और ये जो होता है बाजरा की वैरायटी होती है. ठीक है, इसमें शुगर केन का नहीं है. सो द आंसर इज ए. ठीक है, देखिए इट्स वेरी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है. इसमें कुछ आप दिमाग नहीं लगा सकते, आपको पता है तो ही आप कर सकते हो. आप यहाँ से याद कर लो. देखिए ये 1989 का क्वेश्चन है, तो उस समय ये वैरायटीज़ होंगी मार्केट में. अभी के लिए आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर वगैरह में देखो कि कौन सी वैरायटीज़ अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है. तो वो एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम में वो वैरायटीज़ लिख के आ सकती हैं. ठीक है, ये पुराना है तो उस समय जो भी वैरायटीज़ होंगी वो दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से स्टैटिक को हमें कैसे करंट से लिंक करना, ये इस क्वेश्चन से हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, लुसाई इज़ द नेम गिवन टू ट्राइबल पॉपुलेशन लिविंग इन. ठीक है, तो लुसाई इज़ अ काइंड ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. वो कहाँ पे रहता है? नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय. देखिए जो लुसाई है, लुसाई इट इज़ अ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा. देखिए ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं. ठीक है, उसी तरीके से और भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं. नागालैंड के अलग होते हैं, मणिपुर के अलग होते हैं, मेघालय का अलग होता है. जैसे आप मेघालय में गारो खासी जयंतिया. ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया हिल्स है और गारो खासी जयंतिया इज काइंड ऑफ ट्राइब्स ऑल्सो. ठीक है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए. तो इट इज़ तो आप जो स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके 2-4 तो आप याद ही रखो, क्योंकि एग्जाम में मैच लिस्ट में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है,
यूपीएससी में अनप्रेडिक्टेबल होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही आएगा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं बता दूँ कि ये एग्ज़ाम में आएगा बस, बट हाँ कि हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, पढ़ के रखना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ आता भी है तो वी कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट द नरीमन क्या नारी मान ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन. ठीक है, आप प्रोनाउंस देख लेना जो भी होगा इसका. महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी, ये जो ऑयल फील्ड ये कहाँ पे है? सो इट इज़ एक्चुअली कावेरी डेल्टा में. ठीक है, ये इट इज़ इन कावेरी डेल्टा, प्लीज़ रिमेंबर दिस. लेकिन दूसरा साउथ की जो नदियाँ हैं वो उससे रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती हैं. गंगा यमुना तो सब लोग पढ़े होते हैं, तो जो साउथ की नदियाँ हैं जैसे कृष्णा हुई, कावेरी हुई, इन सबों को आपको याद करके रखना चाहिए. इसके ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं, किस किस स्टेट से फ्लो करती हैं. जैसे आप देखो ये कावेरी का हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है ड्यू टू वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ठीक है, अभी इस पे एक बांध भी बनाया जा रहा है. आई थिंक मुझे नहीं पता, अभी ये पुराना न्यूज़ है. वो बांध बनाने की वजह से जो तमिलनाडु को पानी कम मिल रहा था उसके वजह से बीच में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था. आई थिंक 2018 या 18 में, आई थिंक 17 और 18 में. ठीक है, तो चेन्नई में जो बैंगलोर के लोग थे उनको मार के भगाया जा रहा था, फिर बैंगलोर में जो लोग थे उनको मार के भगाया जाता, वो अपने में लड़ रहे थे. इट इज़ ड्यू टू दिस रिवर. ठीक है, तो कावेरी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के रखो. ओके, और नेक्स्ट, which of the following iron steel plant is closer to coal deposit than iron ore deposit. ठीक है, okay, which of the following iron steel plant is closer to coal deposit than iron ore deposit. ठीक है, it's भिलाई and बोकारो, जमशेदपुर and भद्रावती, बर्नपुर and हीरापुर, दुर्गापुर एंड राउरकेला. ठीक है, इसका देखिए इसका आंसर एक्चुअली बर्नपुर एंड हीरापुर है. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, सवाना ग्रासलैंड. देखिए थोड़ा सा मिक्स हो गया है, मैंने जहाँ से भी लिया है इस क्वेश्चन को वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखने में प्रॉब्लम है, बट नो प्रॉब्लम. इट्स सवाना, ये यहाँ से अलग है. सवाना ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन. ठीक है, तो देखिए जो लोग भी हिस्ट्री बार बार मुँह से निकल रहा है, ज्योग्राफी जो लोग भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, उन्हें इसका आंसर पता होगा. मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है, बट स्टिल आई एम डूइंग, सो आई विल डू दैट. ओके, सो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एशिया. सो इट इज़ एक्चुअली बी अफ्रीका. अफ्रीका सवाना जो है अफ्रीका में. Next, in India, the diamonds are required. Sorry, not required. Diamonds are required from Golconda, Jaipur, Patnagiri, and Panna. It is actually, the diamond is required from Panna. Please remember this. हमेशा gold और silver इन सब चीज़ों के बारे में पूछा था, बट यहाँ पे देखिए डायमंड के बारे में पूछ रहा है, तो प्लीज़ रिमेंबर पन्ना. ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट में भी आ सकता है. ओके, देखिए जो ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन यूपीएससी में भी रिपीट होते हैं फॉर श्योर. ऑलमोस्ट 30 to 40% डायरेक्टली या इनडायरेक्ट फॉर्म में रिपीट होते हैं, बट इफ़ यू टारगेटिंग स्टेट पीएससी वहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन ही आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि एक बुक आती है ना पूर्वावलोकन घटना चक्र की, वहाँ पे हर स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं. आप वहाँ पे देखोगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग स्टेट में रिपीट हो रहा है. ओके, उसको भी मैं कराऊंगा, वो चीज़ भी मैं कराऊंगा. अगर आपको पढ़ने का हिम्मत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए सारे मैं करूँगा धीरे धीरे. ओके, जो लोग जैसे अदर स्टेट के हैं तमिलनाडु और फिर they don't know about that book because that Ghatna Chakra is especially for those UP Bihar people follow. I have not idea, maybe in the south people also followed that.
ठीक है, कुछ उनके लोकल में कुछ अगर वैसी चीज़ें होंगी तो वो फॉलो करते होंगे, बट इट्स नथिंग बट इज लाइक collection of previous year questions of different state PSCs. That's it. Okay. So if you're from some other state like from South India like Kerala or from Tamil Nadu or for AP, there is one book called Ghatna Chakra. There you will find all the previous year questions of different PSCs. Okay. Yeah. Next question. Suitable site of a cement plant required proximity to coal and iron, limestone and manganese, limestone and gypsum, coal and gypsum. So it is actually limestone and gypsum. Okay, so suitable site for cement plant required proximity to limestone and gypsum. So the answer is C. Next, देखिए ये पंजाब है, यहाँ पे बीच में गैप है, पंजाब एंड हरियाणा रिसीव्ड रेनफॉल फ्रॉम, ठीक है, पंजाब और हरियाणा जो है वो कहाँ से रेनफॉल उनको मिलता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, बोथ ऑफ द एबव। डी, देखिए ये बी तो होगा नहीं क्योंकि बे ऑफ बंगाल कहाँ है, पंजाब हरियाणा उधर है, तो ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। इट इज़ एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, सो द आंसर इज ए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्रेनेज, एनुलर, एंटीसेडेंट, सुपर इम्पोज्ड, रेडियल। ठीक है, जो हमारा ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम वो कैसा है वो पूछ रहा है। इट इज एन एग्जाम्पल, it is actually antecedent. Okay, so the answer is B. Please remember this. Next, Angora wool is obtained from the breed of sheep, rabbit, fox, cat. I think you can answer this question. It is actually B, rabbit. ठीक है, कई लोगों को sheep सोच सकते हैं बट इट इज़ नॉट, सिप नहीं होगा, इट इज़ एक्चुअली रैबिट। जो अंगोरा वुल मिलता है इट इज़ फ्रॉम रैबिट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ geography 1989 question. I will come up with the other parts as well. Okay, I think there is a 4 part, so all 4 parts I will complete. Thank you.